So let's continue with the next chapter, that is agriculture. We have already studied in the previous chapters about the distribution and types of soil and types of land. So we totally know which type of land is totally most suitable for the agriculture needs. So comparing to the 1950s and data, we have seen that 42% of the land in India is agricultural land, and according to 210 and 211, 46% land is agriculture, and almost in 70 years 4% land is increased despite the huge population. So our land is in India is an agricultural land. Chhattisgarh also in agricultural land. We can be known as Dhan ka Katora in the middle section because we have a designation shape in different districts. So as per we see that despite all these things, we have to grab around 28. Uh, we can say 28 lakh 16,000. This much products are imported from outside the world in India to make our daily needs. We have seen in the chapter of globalization how this is a global trading system. So let's acquire about the things and read the instance. We still grow crops that our ancestors selected thousands of years back. In the beginning, humans mostly grew food crops. Over time, they began to cultivating cotton, jute, etc. This is the thing when we know to do that. Food crops are which are used for survival. After that, they started growing jute and cotton. So, what is the use of jute? Jute and cotton isn't a food crop. They are used for clothing and different editing purposes. Jute for rope and cotton is for clothing. Today, agriculture is no longer a subsistence activity. That means not only for survival but also for a commercial activity. Farmers give priority to grow to crops that bring them more money as income. So those money-making crops are known as commercial crops. The commercial approach and growing human needs have changed the nature of agriculture. So we have seen in both time and space. According to time and experimentation of people, we have seen and acquired different crops and different times. So let's talk about the agriculture season in India. So in India, farming is done throughout the year in some places, while it is limited to monsoon season in other places. Throughout the year means those places have abundant of water supply throughout the year, and the climate varies from a country across the country during the year. Different crops are grown in different seasons. So different crops have different requirement. It should be remembered in the first skill that all the crops are living organisms and all the living organisms have different requirement for growth and sustainability. So in Chhattisgarh, the irrigated areas of Chhattisgarh जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, paddy is cultivated during the monsoon season. Okay, जहाँ पर बारिश होती है बरोबर वहाँ पर पैडी मीन्स राइस को उगाया जाता है. वाइल वीट एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन. वीट एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन. वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन इन समर सीजन. विंटर के जो वेजिटेबल हम अलग है, समर के वेजिटेबल अलग हैं. इन इंडिया वी हैव थ्री मेन एग्रीकल्चर सीजन्स. देखिए कौन से हैं वो. खारिफ. खारिफ को मानसून सीजन भी कहते हैं या मानसून के ऑनसेट में आने वाला है सीजन. The season starts with the onset of monsoon. During the monsoon, it rains across almost the whole India. So there is enough water for farming. Okay, that is why almost all agricultural land in the country is cultivated during the Kharif season. This should be noted that क्योंकि मानसून पूरे भारत में होती है और लगभग सभी एरिया में गिरती है, इसीलिए खारिफ मानसून सीजन में ही एग्रीकल्चर का महत्व दिया जाता है एंड पूरे कंट्री में लगभग कल्टिवेशन किया जाता है. Let's see. Kharif crops require high humidity and high temperature. So the main crops are paddy, maize, jowar, bajra, mandua, tuar, moong, urad, til, groundnut, soybean, etc. This is to be remembered that this Kharif crops require high humidity, ज़्यादा पानी चाहिए एंड हाई टेम्परेचर, और उनको टेम्परेचर भी चाहिए. तो बरसात के मौसम में क्या होता है, हमेशा तो बारिश नहीं होती है हर एक दिन, इसीलिए उनको पानी और टेम्परेचर दोनों मिल जाता है. So now the requirement for this crop is this. So remember if we start a question, requirement for kharif crops. So इसको एक क्वेश्चन बनाकर आप याद रखिए, आंसर यहाँ से लिखिए. ओके, एंड एग्जाम्पल से आपको याद रखना है कि खारिफ सीजन में कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, खारिफ क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है,
और उनके मेन एग्जाम्पल क्या है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फूड सिक्योरिटी में, कोर्से ग्रेन्स, दिस आर ग्रेन्स स्पेशली ग्रोन इन द एरिड रीजन्स, जहाँ पानी की कमी होती है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। अब पानी वहाँ मानसून में गिरेगा तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी एरिड रीजन, इसलिए तो हमारे खरीफ क्रॉप्स जो है पर मूंग बाजरा उगे हुए हैं, वे सब क्या है, कोर्से ग्रेन्स के अंदर आ जाते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्रॉप सिस्टम इज रबी क्रॉप्स। The Rabi season starts immediately after Kharif. This should be noted that once, है ना, suddenly after just immediately Kharif, Rabi system starts. Okay, this continues through the winter. There is a limited rain during this season. See, we can accountable for the South India, in which the winter season is responsible for continuous rainfall. Okay, so limited rain during the season. Okay, next, farming is only done on the irrigated land and land that has high moisture content. So the point to be noted that बारिश हो चुकी है या बारिश हो रही थी, अब होने वाली होगी बहुत दिनों बाद, तो उस बीच में क्या होता है, लैंड ड्राई पड़ जाता है, लेकिन उस लैंड में सॉइल में क्या क्षमता होनी चाहिए, वो क्या कर सके, थोड़ा सा ज़्यादा हाई मॉइस्चर कंटेंट को रख सके। सो इसके लिए जो क्ले सॉइल होता है, फिर जो ब्लैक सॉइल होता है, सबसे बेस्ट होता है। ओके, लेट्स सी, hence the area shown in Rabi is much more compared to the Kharif. इसीलिए क्या है, बारिश होने के बाद अक्सर ज़मीन में क्या होती है, पानी ठहरने की क्षमता हो जाती है। सो रबी क्रॉप्स कहाँ पर है, जहाँ पर ज़्यादा खारिफ सिस्टम हो। द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सीजन आर फ्रोस्ट रेसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है, जो क्रॉप इस सीज़न में ग्रो करते हैं वे कैसे होते हैं, फ्रोस्ट रेसिस्टेंट होते हैं। इसका तात्पर्य है, आपने देखा होगा जब ठंडी के मौसम में गेहूं को उगाया जाता है, तो गेहूं को ठंडी में जमने से बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जब ठंडी पड़ रही है तो बाहर में वो टेम्परेचर उतना पहुंच जाता है, और प्लांट के जो वेसल्स होते हैं, ज़ाला में पानी भरा होता है, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर का इस्तेमाल करते हुए वे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स को जहाँ पर गेहूँ होता है उस खेत में पानी को भर देते हैं। इससे क्या होता है, जड़ों में पानी का टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहे, थोड़ा सा जीरो से थोड़ा ऊपर, जिससे कि पानी जमता नहीं। अब प्लांट क्या करता है, सर्वाइव करता है। लेट्स सी, they include wheat, barley, rapeseed, tortilla, mustard, flaxseed, alsi, and masoor chana, etc. These are known as the rabi crops. Next, see, in places where irrigation is available or where there is some rain during rabi, paddy is also cultivated. इस इन्होंने dual cultivation भी कहते हैं इसको, जहाँ पर क्या है, पानी बरोबर हो और रबी के समय, तो वहाँ पर साथ में चावल भी बो लिया जाता है। इसको हम लोग डुअल कल्टिवेशन भी कह लेते हैं। तो वन एग्जांपल ऑफ रबी पैडीज इन वेस्ट बंगाल, जहाँ वेस्ट बंगाल में पानी की कमी नहीं होती और बरसात के साथ ठंडी के मौसम में बारिश होती है, तो वहाँ पर गेहूँ के साथ साथ या रबी फसल के साथ साथ वहाँ पर पैडी फसल को भी उगा लिया जाता है। ओके, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ द सीजनिंग प्लांट इज जेड। This is the important section you should remember. This agricultural season begins when winter ends. ये समर की शुरुआत में होता है। It is a season of summer crops. Okay, यहाँ लिखा भी हुआ है, Z means season of summer crops. When there is no rainfall, जहाँ पर rainfall नहीं होता, so the most of the land is left uncultivated. इसलिए fallow land बनाने के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, here comes, hence irrigation needed to grow Z crops, which is known as different like Grama, Dalwa, and Boro in different parts of the India. Okay, the area shown in Z is much lower than in Rabi. See, चूँकि गर्मी के मौसम में पानी की ऑलरेडी कमी है, we have the scarcity of water throughout the India, so those places which have proper river system, irrigation system, which can provide water in this season, are able to grow the Z crops. Okay, usually Z farming is done on river beds. इसीलिए पानी की कमी हमेशा रिवर बेड्स कभी कभी नहीं होती। पानी ज़मीन अगर रिवर सूख भी गया तो भी
थोड़ा सा वहाँ पर आसपास नमी रहती है ज़मीन में आसपास, क्योंकि पानी नीचे बह रहा है। तो लोग क्या करते हैं, नदी किनारे को पानी बोर से या किसी और चीज़ों का मैं तरीका बना करके वेल खोद लिया, कुछ पॉन्ड बना लिए, उससे क्या है पानी की पूर्ति हो जाती है। लैंड अराउंड लेक्स एंड लोअर प्लेन्स वेयर इरीगेशन इज अवेलेबल, जहाँ पानी की व्यवस्था पर्याप्त हो, ठीक है। द क्रॉप्स मस्ट बी एबल टू टॉलरेट द सीवियर समर हीट। सो गर्मी में बहुत वो तो पड़ता ही है हीट। तो एग्जाम्पल बेस्ट क्या है, कुकुम्बर, वाटरमेलन, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आर द मेन क्रॉप। तो जेड में इन क्रॉप्स को उगाया जाता है। इन सम प्लेसेस सच एज पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन इरीगेटेड पैडी इज ऑल्सो कल्टिवेटेड ड्यूरिंग सीजन। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर पानी की कमी नहीं है वहाँ पर फिर से चावल उगा लिया, फिर यहाँ पर फिर से डबल कल्टिवेशन कर लिया गया। ओके, जैसे आप धमतरी में जाओगे तो वहाँ पानी कमी, गंगरेल डैम बना हुआ है, तो वहाँ के लोग हाँ सालों साल खेती करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ कसोल तरफ जाओगे तो आपको रास्ते में हमने देखा होगा वाटरमेलन तो उगा ही हुआ है ना। रिवर किनारे बहुत सारी नदियाँ छत्तीसगढ़ में है, इसलिए जेड क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और काली क्रॉप्स उगाने के लिए कोई कमी ही नहीं है हमारे यहाँ। ओके, दिस इज फॉर दी 3 टाइप्स ऑफ seasonal plants. So write the question. So I've already discussed this question. So try to write this question. Okay. The next part is the agriculture production in India. Now we see how the agriculture production in India has increased or decreased. Agriculture production in India's total volume or quantity of harvested crop. तो क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। तो क्या लिखोगे, व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो क्या लिखोगे इज द टोटल वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स। क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ओके, इन इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज ऑलमोस्ट 5 फोल्ड ओवर ए लास्ट 60 ईयर्स। 5 गुना बढ़ गई बता रहे हैं। अब देखिए ज़मीन तो सिर्फ 4% बढ़ी है, लेकिन एग्रीकल्चर करने के तरीके ज़्यादा हो गए हैं। इन 1950s to 51 टोटल ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज 51 मिलियन टन्स। इट इंक्रीज टू 244 मिलियन टन्स इन 2010-11, है ना। पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि 1950 से 1951 में सिर्फ 42% जो लैंड थी भारत में वो एग्रीकल्चर लैंड हुआ करती थी। अभी 2010 और 11 में कितना हो गया, 46% हो गया। सिर्फ लैंड की वृद्धि इस्तेमाल में सिर्फ 4% की वृद्धि हुई है, 4% इज इंक्रीज, बट द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स आर इंक्रीज 5 गुना बढ़ गया है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, अच्छी एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ आ गई है, आसानी से उगने वाले क्रॉप्स मिल गए हैं और तरीके हो गए हैं जिससे कि पानी की क्वालिटी कराई जा सकती है। बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्निक आ गए हैं जिससे प्रोडक्शनविटी बढ़ गई है हमारी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया पॉपुलेशन इंक्रीज 3/4, पॉपुलेशन भी बढ़ी, 36 करोड़ से कितना हो गया 121 करोड़, 2011 में हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया है। हैंस द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज मोर रेपिडली दैन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। ऑयल सीड देखिए यहाँ पर क्या है, ऑयल सीड प्रोडक्शन रोज 6 फोल्ड्स, 5 मिलियन टन से यहाँ तक 32 मिलियन टन हो गया। ओके, ऑयल सीड मतलब तेल। बट द पल्स प्रोडक्शन ओनली डबल्ड फ्रॉम 8 मिलियन टू 18 मिलियंस, इतना। ये पल्स मतलब क्या है, प्रोटीन कंटेनिंग थिंग्स, ठीक है, दाल जो आप लोग खाते हैं। तो पल्सेस की प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पाई है जितनी की होनी चाहिए थी। सो द ग्रोथ ऑफ पल्स प्रोडक्शन हैज़ बीन मच लोअर दैन ऑफ अदर क्रॉप्स, ठीक है। Let's see the growth in production has varied from crop to crop. We understand the trend by filling the different blanks in the following. नीचे दिखते ही क्या लिखा हुआ है। ओके, यहाँ देखिए डेटा दिया हुआ है कि नहीं। बताया जा रहा है कि पैडी बढ़ गया है ना, मिलियन टन 100 गुना हो गया है, यहाँ से 100 मीट्रिक टन 90 मीट्रिक टन बन रहा है। वीट बढ़ गया है, यहाँ देते ऑयल सीड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठीक है, मेज़ बढ़ा हुआ है, पल्स ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, ज्वार नहीं बढ़े, बाजरा नहीं बढ़े हैं। जो कि बाजरा और ज्वार क्या होते हैं, दे आर द कोर्से ग्रेन्स, है ना, वेरी रिच इन न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। ये हमको उगाना है, देखिए यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है ऑलरेडी। सो तो
ये मिलर्स दे सकते हैं, वो तो और कम हो गए, ठीक है। ऑयल सीड्स 5 से 32 और पल्सेस सिर्फ 18 हो, वैसे 10 फोर से दो डबल ही वाले देखे। सो वी रिक्वायर्ड मोर पल्सेस फॉर acquiring the protein content of India. Okay, let's see what are the three main results in agriculture production in India over last 60 years. ठीक है, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, पहले ही बन गया है, what are the main what are the reasons for increase in agriculture production in India? What are the reasons for increase in agriculture production in India? Okay, क्या है पहला रीज़न, वो है नेट इन इंक्रीज इन नेट शोन एरिया। मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा एरिया को अब खेती के लिए बनाया जाता है। इंक्रीज इन एरिया अंडर इरिगेशन, बहुत सारे एरिया पानी के मतलब अच्छे इरिगेशन सिस्टम बना लिए गए जहाँ पानी आप पहुँच सकता है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, और अलग अलग तरीके से और अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करके, फर्टिलाइजर से लेकर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से बहुत सारे अलग तरीके हो गए प्लांट उगाने के, उसको कंजर्व करने के, जैसे लाइट उसको देने के, उससे क्या कर लिया गया है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली गई। तो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंक्रीज इन नेट शोन एरिया। शोन एरिया रिफर्स टू द टोटल लैंड ऑन विच क्रॉप आर शोन। ठीक है, अब शोन एरिया, व्हाट इज शोन एरिया मतलब क्या लिखोगे, व्हाट इज शोन एरिया, ये इसका आंसर होगा। ओके, सोन एरिया रिफर्स टू द टोटल लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन, जिसमें फसल को उगाया गया है। इफ दिस एरिया इंक्रीजेज द प्रोडक्शन इंक्रीजेज, तो स्वाभाविक सी बात है, इंडिया हैज़ अ फिक्स्ड लैंड मास। ओके, इंडिया में फिक्स्ड लैंड मास है। द फिक्स्ड एरिया हैज़ डिफरेंट फीचर्स एंड यूजेस, फॉरेस्ट, डेजर्ट, एग्रीकल्चर लैंड एक्सेट्रा, जितने हमने पीछे पढ़ चुके हैं। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द लैंड अंडर एग्रीकल्चर विल हैव टू क्लियर फॉरेस्ट और इरिगेट द डेजर्ट। अब क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट काटना पड़ेगा या फिर डेजर्ट इरिगेट करना पड़ेगा। In last 60 years, the area under agriculture has expanded with major expansion taking place in 1950s. ठीक है, the area has remained more or less the same since then, and small changes in area can be accounted for more land left follow during an agriculture season or agriculture land put to other users. क्या है, छोटे छोटे चेंजेस कर लेते हैं क्योंकि एरिया को फॉलो छोड़ दिया जाता है या फिर दूसरे इस्तेमाल के लिए लैंड का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जहाँ पर घर बना लिया, सिटी बसा लिए, है ना, बहुत सारी इसमें कारण चीज़ें हैं। देखिए यहाँ से देख सकते हैं कितना बढ़ गया है, 199 से 119 से 142 हो गया है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द नेट शोन एरिया विद एग्जांपल, इज इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द एरिया अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया, इसको बता सकते हो आप, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। शुड फॉरेस्ट बी क्लियर टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर, इसको बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो पिछले आंसर पिछले चैप्टर में पढ़े लैंड रिसोर्सेज के बाद उसके हिसाब से बता सकते हैं आप। ठीक है, देखिए सेकेंड टॉपिक है, इसको भी आपको करना है। ओके, लेट्स सी, ट्राई टू राइट योर आंसर देन आई विल शो यू। ओके, इंक्रीज इन एरिया अंडर इरीगेशन, क्या लिखा हुआ है, as we have seen earlier it is not always feasible to bring more land under cultivation। इसका मुख्य कारण ये होता है कि हमारा पानी नहीं पहुंच पाता। ओके, बट प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज टू सम एक्सटेंट बाय ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स इन ए ईयर। ठीक है, ये भी एक तरीका है। इरिगेशन हेल्प्स टू अस टू ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड। इरिगेशन फैसिलिटीज हैड बीन एक्सपेंडेड टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाई मेकिंग इट पॉसिबल टू कल्टिवेट द लैंड। इरिगेशन फैसिलिटीज, पानी पलाने की क्षमता, कैनल बना करके, अलग अलग छोटे धाराएं बना करके, नलों के द्वारा, डैम के द्वारा पानी को जगह जगह पहुंचाने की क्षमता। ओके, इन 1950 1951 16% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर लैंड वॉज इरीगेटेड। केवल 16% को क्या किया जाता था, इरीगेट किया जाता था। अब कितना किया जाता है, 32 हो गया है, तो अच्छे अमाउंट है। ओके, मतलब गर्मी के मौसम में अगर पानी नहीं है आपके पास तो पानी की सुविधा उस मौसम में आपको दे दी जाएगी। देखिए इसका कारण क्या है मुख्य, अब देखिए पूछा जाएगा, what are the different मीन्स ऑफ इरीगेशन, क्या क्या दिए, इसका आंसर दिखते हैं यहाँ पर। 1, इसको कर लेते हैं ब्लू में, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें डैम्स आ जाएंगे। ओके, कैनाल्स, रिजर्वायर्स, बोरवेल्स, डग वेल्स, और उसमें डैम्स आ जाएंगे। ठीक है, और आर्टिफिशियल रिवर्स भी आ सकते हैं, बहुत सारे अलग एग्जांपल हैं इसके। ओके, दिस शुड बी द
5 थिंग्स शुड रिटर्न। इसमें आप अदर्स में डैम लिख लेना और कम से कम 6-8 एग्जाम्पल और लिख लेना। इसको एलाबोरेट करके, ओके, ठीक है। इरिगेशन मेड पॉसिबल टू सो इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ सीड दैट हैव गिव हायर यील्ड्स। अब पानी के बिना सीड ज़्यादा प्रोडक्शन देगा नहीं, और बहुत सीड ऐसे होते हैं, अलग अलग सीड का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो इट ऑल्सो मेड इट पॉसिबल ग्रो क्रॉप्स ऑन सेम लैंड ड्यूरिंग रबी एंड जेड सीजन। इसीलिए जब पानी नहीं है फिर भी पानी की व्यवस्था होने पर आप उस मौसम में भी क्या कर सकते हैं, पानी को उगा सकते हैं, जैसे कि रबी और जेड सीजन्स में, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज आवर इरिगेशन नीड्स आर लार्जली बीइंग मेड बाय डैम्स। अब देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा डैम्स और सब सरफेस वाटर से मिलता है। बट ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ लेड टू रैपिड डिप्लीशन इन द वाटर टेबल, ओके। देखिए पंजाब हरियाणा द वाटर टेबल हैज़ फॉलन टू 4 to 6 मीटर्स। दिस हैज़ लेड टू बोरवेल ड्राइंग अप। पानी का लेवल ग्राउंड में नहीं मेंटेन हो रहा है। इसका मुख्य कारण ये भी रहता है कि जंगल वंगल काट देने से क्या होता है, पानी स्टैगनेंट नहीं हो पाता कहीं पर, और पेड़ पौधे क्या होते हैं वहाँ पर रूट्स की वजह से हॉलो स्ट्रक्चर बना होता है, जिससे कि पानी ग्राउंड में चला कर मतलब ग्राउंड के अंदर जाता भी है। हमने क्या किया है, जगह जगह फॉरेस्ट को काट दिया है ना, सिटी बसा लिए हैं, तो वहाँ पर जो फीलिंग होती थी ग्राउंड वाटर की वो नहीं हो पा रही है। इसके अलावा हर एक घर में बोर होना ही चाहिए, तो बोर सभी घर में शहरों में, तो उस एरिया में पानी नहीं मिलता। अब रायपुर में भी हाल ही में न्यूज़ पढ़ेंगे तो 800 फीट तक पानी नहीं था, सूखा था। चेन्नई में हमने पढ़ा था कि चेन्नई तो जस्ट समुंदर के बगल में ही है, वहाँ 2500 फीट तक पानी नहीं था। सो ये सब क्या है, इंस्टेंट जो ग्राउंड वाटर लेवल हो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, उसको रिचार्ज होने का अवसर भी चाहिए, रिचार्ज होने का साधन भी चाहिए, ओके। तो हमको सिटी की प्लानिंग इस तरह से करनी चाहिए कि हम ऊंचाई से ढलान की ओर रहें, ऊंचाई से ढलान की ओर रहें, जिससे कि वो क्या हो, पानी की धार या जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो हाई से नीचे की ओर बहेगी, है ना, लोअर सेक्शन में बहेगी। तो हम लोअर सेक्शन में क्या करेंगे, अगर घर को बसाते हैं तो हमको पानी की कमी नहीं होगी, ओके। लास्ट टॉपिक इज द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। लेट्स सी, प्रोडक्टिविटी मीन्स द इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। उसी सेम प्लॉट से हमको साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप मिल सके। As we saw earlier that available land is more or less fixed। जो लैंड होता है वो मोर होता है, मतलब वो फिक्स होता है, या फिर थोड़ा उसको ऊपर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सीजन में क्या होता है, अलग सीजन में पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर के सारे हिस्सों को इस्तेमाल नहीं कर सकते अब लैंड के, कुछ ना कुछ से छूट जाता है। जैसे कि गेहूँ के मौसम में क्या करना पड़ता है, गेहूँ के मौसम में पूरे यहाँ से वहाँ तक पौधे को लगाया हो तो उसमें दिक्कत नहीं क्या हो। चावल में क्या करना पड़ता है, चावल में रोपा डालना पड़ता है, उसमें चावल के फिक्स्ड क्वांटिटी को फिक्स करना होता है, ठीक है। सो एक्सपेंडिंग इरिगेशन इज ऑल्सो पॉसिबल अप टू ए लिमिट। इसीलिए इरिगेशन को भी एक एक्सटेंडेड लिमिट में क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि जितना आपके पास लैंड है उतने में तब पानी पहुंचाओगे भाई, ठीक है। दैट्स व्हाई ह्यूमंस हैव ऑलवेज ट्राइड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ लैंड एंड हैव सक्सीडेड टू सम एक्सटेंट। अब यहाँ पर एक टॉपिक आ गया, व्हाट इज पर यूनिट प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। तो एक लैंड से आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो, क्या कहलाएगी, पर यूनिट प्रोडक्टिविटी कहलाएगी, ओके। ये भी एक क्वेश्चन है तो इसको लिख लेना आप लोग। तो हमने पर यूनिट के हिसाब से पर कैपिटा पढ़ लिया, पर इनकम पढ़ लिया, है ना, और प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड पढ़ लिया, और ये बहुत सारे पर यूनिट के हमने पढ़े हुए हैं। पर यूनिट फूड पढ़ा उसमें फूड सिक्योरिटी में, ओके। अब देखते हैं आगे, हैव सक्सीडेड टू सम एक्सटेंट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज द मोस्ट इन केस ऑफ वीट एंड मेज। सबसे ज़्यादा किसके केस में बढ़ी है, वीट और मेज की वजह से, ठीक है। क्योंकि चावल और गेहूँ में और मेज़ में क्या नहीं करना पड़ता है, आपको रोपा डालना नहीं पड़ता है, जाकर लाइन वाले उसको लगाना नहीं पड़ता है चावल की तरह। इससे क्या होता है, ओवरऑल जो एरिया है लैंड का वो ज़्यादा यील्ड देता है, ठीक है। जो गैप बनते हैं वो गैप नहीं बनते इसमें। इन 1950 951 द एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ वीट इज 663 kg। अब वो कितना हो गया है, 2938 kg पर हेक्टेयर हो गया है। द इंक्रीज इन मेज इतना था 577 kg, अब कितना हो गया, 2540 kg हो गया है पर हेक्टेयर, ओके, फॉर द सेम पीरियड, ठीक है। बट द इंक्रीज इन यील्ड वॉज मच लोअर फॉर पल्सेस। पल्सेस के लिए बहुत कम है, जहाँ इतना उस समय हो रहा था अब इतना ही इस समय भी हो रहा है। इसीलिए पल्सेस की यील्ड की कमी कैसे और क्यों हो गई, ये डिपेंड किस लिए भी करता है
कि पल्सेस को उगने के लिए कैसे रिक्वायरमेंट चाहिए, वो रिक्वायरमेंट हमको मिल रहा है, उसको दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, उसके पर्याप्त लैंड है कि नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स पल्सेस के रिस्पॉन्सिबल हैं, देखते हैं आगे दिखा होगा। मैनी फैक्टर्स फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटिंग हाई यील्डिंग सीड्स। ये सीड्स एक्चुअल में क्या है, जैसे ह्यूमन्स को हम ले लेते हैं, तो जैसे हम अलग अलग देश का बात करें तो अफ्रीका वो देश है जहाँ पर रिप्रोडक्टिविटी की समझौता रेट सबसे ज़्यादा है, वहाँ रिप्रोडक्शन रेट सबसे अच्छा है। मतलब हर 10 में से 9 महिला को क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी, और उनको बच्चे कंज्यूम करने की क्षमता है बढ़िया। ऐसा ताइवान देश में चले जहाँ पर जितना एडवांस टेक्नोलॉजी, ताइवान हो गया, मलेशिया हो गया, आपका कोरिया हो गया, यहाँ आप चाइना जापान में जाएंगे वहाँ पर उतनी प्रोडक्टिविटी कम है, भारत में भी ये होने लगी है। ठीक है, तो ये सीड्स भी एक्चुअल में क्या है, बच्चे हैं, है ना, एक उगते हुए जीव हैं। तो कुछ को अगर सही पोषण मिला या कुछ हर इन्वायरमेंट अडेप्ट नहीं कर पाए तो क्या हो जाते हैं, कम प्रोडक्टिविटी देते हैं। यह सीधे तात्पर्य यह है कि उस प्लांट की बच्चे पैदा करने की क्षमता ज़्यादा है कि नहीं, कुल मिला के तो इसका ही मतलब है। ओके, सो जितना ज़्यादा सीड मतलब उस प्लांट उतने ज़्यादा बच्चे पैदा किए हैं अपने। ओके, यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज अर्लियर ट्रेडिशनल सीड्स आर शोन। क्या था पहले, पुराने मतलब जो पीढ़ियों दर पीढ़ी सीड चले आ रहे हैं उसको शो किया जा रहा है। कैसे, मान लीजिए एक पीढ़ी में चावल जो उगा है उस चावल को बचाया जा रहा है, उसके सीड को बचाया, गेहूँ सीड को बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। अब ये मान लीजिए ये क्या हो गया, अच्छा उस सीजन में, अच्छा सीजन में उस समय बढ़िया, उसमें कुछ कमी पड़ गया मान के चलिए। पहले तो भाई ये सब पेस्टिसाइड, ये सब दिक्कत नहीं था हमारे, मतलब सहारा नहीं था हमारे पास। तो ये सीज़न में क्या हुआ, इस जनरेशन में वो बहुत अलग अलग बीमारियों से होकर गुजरा। तो उस समय वो कैसे पैदा हुए बच्चे, जो है कमज़ोर बच्चे पैदा हुए। ओके, अब उसको नेक्स्ट जनरेशन में किए तो ऑलरेडी पहले से कमज़ोर, तो और कमज़ोर बच्चे हो जाएंगे, अगर अच्छा सही सपोर्ट नहीं मिला तो और कमज़ोर हो गए। ऐसा करते करते क्या होता था, इस वजह से साल दर साल उनका प्रोडक्शन रेट गिरते रहता था। ठीक है, तो अब वो प्लांट ऐसे मतलब जो बच्चे शुरू से पैदा हो रहे हैं वे इतने सूटेबल ही नहीं हैं कि वो ऐसा हार समय में रह सकें, उनको बीमारी कुछ ना कुछ इनकेविटेबल दिक्कतें होंगी। तो इससे क्या होगा, वो आगे चल के वो उतना अच्छा यील्ड नहीं दे पाएंगे। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं आजकल, GMO इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है गोल्डन राइस। ठीक है, और हमारे यहाँ उस समय ब्लू रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन भी हुआ, श्वेत क्रांति और नील क्रांति। ठीक है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। याद रख लीजिए, ब्लू क्रांति जो है क्रॉप से रिलेटेड है और वाइट जो है मिल्क से रिलेटेड है। ओके, अर्लियर ट्रेडिशनल सीड्स आर सोन। ओके, रिसर्च विद दिस सीड्स हेल्प्ड अस टू डेवलप हायर यील्डिंग वैराइटीज। इस मतलब क्या है, आप सिंपल प्लांट को जो फूल होते हैं, फूल फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। ओके, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। सो उसको सिंपली आप हाथ से भी दोनों अलग अलग प्लांट्स को, मेल फीमेल को मिक्सअप करा के, ऐसा टच करा करके उसमें क्या कर सकते हो, फर्टिलाइजेशन करा सकते हो। ठीक है, फिर उसमें सीड बनना शुरू हो जाएगा। सो उसको आप अच्छा एडवोकेट एनवायरनमेंट यहाँ दोगे, प्रॉपर प्रोटीन और जितने भी दिक्कतें हैं उसको उससे दूर करने के लिए उसको प्रॉपर वैक्सीन केमिकल सब दे रहे हो, ऑल द फैसिलिटीज आर बी प्रोवाइडेड टू इट। सो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे, और एक ही जनरेशन में अच्छा नहीं पता तो मल्टीपल जनरेशन किए जाते हैं उसके, क्या किए जाते हैं, मल्टीपल जनरेशन किए जाते हैं, है ना। तो मल्टीपल जनरेशन से क्या होता है, ऑलरेडी जब जनरेशन बाई जनरेशन को अच्छा अडेप्टिव मिलते जाता है तो क्या होता है, खुद ब खुद अपने कमी को दूर कर लेता है। समझ में आया नहीं। सो इस तरह से क्या होता है, हमको हाई सीड यील्डिंग वैराइटीज मिल जाती है। द न्यू सीड्स यील्डिंग मोर पर यूनिट ऑफ द लैंड कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, इसीलिए वो पहले से ज़्यादा अच्छी हैं। लीडिंग टू हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इम्प्रूव सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स फेयर द बेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर एक और रेवोल्यूशन आ गया, ग्रीन रेवोल्यूशन है, गलत कह दिया, with fertilizers giving immediate increase in production। ओके, देखिए क्या क्या है, पैडी में इंक्रीज है, वीट में इंक्रीज है। सबसे ज़्यादा वैरायटी अगर किसी की डेवलप की गई है तो है वीट की। ठीक है, ये वीट के लिए कैसा भी है, वीट को आप ऐसा लगा दो तो उसको आपको ऐसे राइस की तरह अलग अलग सेक्शन में लगाने में, तो राइस में क्या हमने देखा होगा, राइस के क्रॉप में थोड़ा गैप हो जाता है बीच बीच में, तो उस गैप को इस वीट के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता आपको, इससे क्या और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, देखिए
बट द क्वेस्ट फॉर हायर yields led to the rampant use of chemical fertilizers and pesticide. अब सस्ते में शॉर्टकट निकाल के ज़्यादा yield करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया। इससे अब हमारे लिए वो खतरा सा हो गया है। आपको मैंने पहले एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, उसका नाम है बायोमैग्निफिकेशन। DDT ये पेस्टिसाइड है जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है। ये प्लांट में क्षमता ये होती है कि प्लांट किसी भी चीज़ को सक्सेसिव जनरेशन के बाद क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने ही बॉडी का हिस्सा बना लेता है। ठीक है। सो DDT भी क्या है, अब अलग अलग प्लांट के साथ, मान लीजिए मैंने बताया था, मान लीजिए ये पहला सीज़न है इसका, ये दूसरा तीसरा है पैडी का, मान लेते हैं, इसको नाम को हटा दीजिए। तो पहले सीज़न में हमने DDT इस्तेमाल किया, दूसरे में किया, तीसरे में किया, अब हमने DDT को बंद कर दिया। तो ऑटोमेटिक DDT का क्या है, क्वालिटी तो पहले से उस सीज़न में है ही, सीड्स में है ही, तो आगे चले क्या हो जाएगा, वो और ज़्यादा मात्रा में बढ़ के आपके फूड में आ जाएगा। ठीक है। देखिए, टुडे वी आर सीइंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सच एक्सेसिव यूज़। सो नेचर एक क्या है, नेचुरल साइकिल की तरह है। नेचुरल साइकिल ऐसा बना हुआ है, अगर आपने शॉर्टकट मारने के चक्कर में क्या किया, नेचुरल साइकिल को क्या किया है, डिस्टर्ब किया है कुछ ना कुछ। ठीक है। अगर आपने कुछ डिस्टर्बेंस किया हुआ है तो क्या होता है, इस डिस्टर्बेंस से कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये साइकिल टूट गया यहाँ से, तो अपना फिर से नया साइकिल बनाने के लिए क्या करेगा, वो एक नया पाथवे चॉइस करेगा। इस पाथवे में पहले से चीज़ें नहीं रहेंगी, कुछ कमी रहेंगी, कुछ आपको कुछ ज़्यादा अलग अलग मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ा लॉस है। देखिए, दिस केमिकल्स have severely compromised soil fertility in long terms and while agriculture fields turning barren. इससे क्या हो रहा है, ज़मीन बंजर हो रही है। ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। अब मतलब उसमें फर्टिलिटी से तात्पर्य किसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉइल में भी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, फर्टिलिटी को मेंटेन करें। फर्टिलिटी मतलब तात्पर्य क्या है, वो डेड चीज़ों को या मिट्टी को खाकर या ऑर्गेनिक चीज़ों को खा करके उसको फर्टाइल बनाते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल है, आपने गेंगरवा तो देखा होगा, अर्थ फॉर्म है ना, क्या करते हैं उसको, गोबर आपने बहुत सा ढेर रखा, गोबर में उसको डाल दिए, तो वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, बस उसको खा के पॉटी कर रहा है। तो हमारा जो वेस्ट है वो प्लांट्स के लिए एक फूड की तरह है, और उनका जो वेस्ट फ्रूट है वो हमारे लिए फूड की तरह है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या चल रहा है, साइकिल चल रहा है। तो प्लांट ने हमको क्या दिया, फ्रूट दिया, तो हमने उनको अपना वेस्ट दिया, सामान कर चलिए। सो बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजनस बैक्टीरिया कहते हैं, है ना। इसके अलावा और बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो एक अलग इकोसिस्टम बनाकर रहते हैं। अगर आपने कहीं पर पौधे उगाए हैं तो उस पौधे में, और जैसे कि आपकी बॉडी को ले लीजिए, पौधों की बात ही नहीं करेंगे, आपकी बॉडी भी क्या है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक होम भी है। ठीक है। आपकी बॉडी भी अपने आप में अलग यूनिवर्स है, मान लीजिए आप उसको स्टडी करने जाओगे और देखोगे क्या क्या हो रहा है, तो आपको अजीब लगने लग जाएगा। ठीक है। आपको बहुत सारी नई डिस्कवरीज मिलेंगी, देखेंगे कि आप भाई हर दिन ऐसे हाथ मसलने से सैकड़ों लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को मार रहे हैं। फिर हम यहाँ पर नॉन वेज कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सो ये सब बातें क्या हो जाती हैं, एक आइडियोलॉजी की तरह बस दिखाई देती हैं। ठीक है। जो कि पूर्ण रूप से सिर्फ एक विचारधारा है। अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, सर्वाइवल के लिए जिसको खाना चाहिए उसको खा लेते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, पंजाब सॉ द मैक्सिमम यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड, सो इट सफर द मोस्ट। और चूँकि पंजाब सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन भी करता है, आवर फूड कंटेंट्स हाई लेवल्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एडवर्सली अफेक्टिंग आवर हेल्थ। इसलिए लोगों की जो लाइफ स्पैन हो क्या हो रही है, धीरे धीरे घटती चली आ रही है। इसके अलावा हमने सबसे खतरनाक चीज़ें जो एग्रीकल्चर के अलावा जो चीज़ें पैदा करके पहन रहे हैं वो क्या है, जूते, चप्पल। इससे क्या हो रहा है, हमारा बॉडी जो है जो अर्थ से नेचुरल कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। और भी जो खाना पीना हम खा रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल है वो बदल गया है। पहले लोग दिन भर चला करते, लंबा लंबा साइकिल चला, गाड़ी घोड़ा सब आ गया, आराम हो गया है जीवन। इससे क्या होता है, हमारी शारीरिक क्षमता बचपन से लेकर अब तक कम पड़ जाती है। ओके, लेट्स सी, वी नीड टू फाइंड अल्टरनेटिव वेज टू इंक्रीज जेल्स एंड रेस प्रोडक्टिविटी टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इसलिए हमको क्या चाहिए, अल्टरनेट वेज चाहिए और चाहिए, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है। इम्प्रूव सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर एक्सपेंसिव। देखिए क्या है, अच्छे प्रोडक्टिव सीड्स महंगे होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर भी महंगे होते हैं, पेस्टिसाइड महंगे होते हैं। सो दे रेज द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। अल्टीमेटली क्या होता है, ये कल्टिवेशन के कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। इस तरह से क्या होता है, वो जो मार्जिन है क्रॉप का, जो बचा किसी ने उगाया होगा, वो बढ़ जाता है। सो मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया आर मार्जिनल फार्मर्स। मतलब क्या है, मोस्ट फार्मर जो हैं वो क्या हैं, इस मार्जिन से कम होते हैं, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं वहन कर सकते।
दे फाइंड डिफिकल्टी टू अफोर्ड दिस इनपुट्स, है ना। इसके अलावा इफ़ ए फार्मर यूजेस दिस एक्सपेंसिव इनपुट्स एंड हर क्रॉस फेल्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज और पेस्ट अटैक। सो अगर ये सब उन्होंने किया है, उनका क्रॉप क्या हो जाए, नेचुरल कैलामिटीज़, पानी वानी कोई दिक्कत हो गया, कुछ कीड़े मकोड़े पड़े, बीमारी हो गई, तो उनको बहुत बड़ा लॉस है। इसीलिए वे क्या करते हैं, इसको अपनाते नहीं हैं। इवन इफ़ ही गेट्स ए गुड क्रॉप ही ऑफन डज नॉट गेट ए गुड प्राइस। अब देखिए, अगर अच्छा फसल उन्होंने उगा लिया फिर भी उनको अच्छे पैसे नहीं मिलता मार्केट में। अब देखिए, ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कैसे आपको मैंने समझाया कई बार, चेन ऑफ इकोनॉमी में आप जो चावल सोसाइटी में लेते हैं, है ना, उसी चावल को लोग गवर्नमेंट जो है किसानों से ले रहा है। ओके, अब फिक्स प्राइस में ले रहा है किसानों से। अब वो एक्सिस चावल को उसी चावल में से या उसी चावल को किसानों से फैक्ट्री वाले भी ले रहे हैं, उसको बस प्रोसेस करके अच्छा से पैकेज करके आपको सजा के मार्केट में दे रहे हैं। अब आप उसका प्राइस ज़्यादा दे रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव मिला करके या कुछ ना कुछ एक्सटेंसिव केमिकल मिला करके उसका टेस्ट बदल देते हैं और आपको वो अलग अलग लगता है। ठीक है, सो उसको अलग अलग प्रिजर्व करके लंबे समय तक चल सके, उस टेक्निक के और उस प्रोसीजर को रखने के लिए क्या करते हैं, वे इस प्राइस को बढ़ा देते हैं। देखिए, प्रॉफिट की मार्जिन है, शेयर ऑफ इकोनॉमी, प्रॉफिट बिना आपको कोई नहीं मिलेगा। सो इस तरह से क्या होता है, जो उगा रहा है उसको ज़मीन मेहनत करके उसी को प्राइस नहीं मिल रहा है, जो उसका प्रोड्यूसर है, विच अगेन लीड्स टू लॉसेस। इन सच कंडीशन शी और ही इज फोर्स टू टेक लोन टू सो ए क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। इस तरह से क्या होता है, उनको अगले महीने अगले सीजन के लिए लोन लेकर के उनको क्या करना पड़ता है, क्रॉप उगाना पड़ता है। इफ़ ही फेसेस लॉस अगेन ही हैज़ नो मनी लेफ्ट टू रिपे डेप्ट। अब देखिए, उनके पास अगर लोन लेने के बाद मुश्किल से 5-6-10 हज़ार का लोन रहेगा, उसके लिए उसको बैंक वाले जान खा देते हैं। इधर लोग करोड़ों में लोन ले रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे क्या होता है, इनडेबिटनेस हैज़ लेड टू मैनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड्स इन आवर कंट्री। इससे क्या हो रहा है, लोन ना चुका सकने की वजह से क्या करते हैं, जिनको परेशानी और दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती हैं, वे तो खुददार व्यक्ति होते हैं, तो मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत व्यक्त करने वाले व्यक्ति को क्या ये सुनना नहीं पसंद होता है। तो इससे क्या लगता है, उनको बेइज्जती फील होता है, और वे क्या कर लेते हैं, उसे सुसाइड कर लेते हैं आत्मग्लानि से, या आत्मग्लानि कहेंगे उसको। वही अब एक बात हो जाती है, समझ लीजिए उसको आप लोग। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इम्पैक्ट डज एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैव ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्या लगता है आपको, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में प्रभाव पड़ रहा है क्या? सो इट डेफिनेटली इज अ कॉज दैट इंक्रीज इन प्रोडक्टिव मीन्स वी हैव मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बट it also causes the loss of land fertility and causing the land to get barren also. It includes also the foods will have foods are to be less nutritious, toxic chemicals are being used. So बहुत सारी चीज़ें हैं इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ओके, सो इस इम्पैक्ट को हम कैसे समझेंगे, अभी हमारे इम्पैक्ट अभी सिर्फ इसमें पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है। ओके, विच क्रॉप्स हैज़ बीन सीन द मैक्सिमम इंक्रीज इन यील्ड एंड विच हैज़ बीन सीन द लोवेस्ट इंक्रीज इन यील्ड। किसको कहा देखा गया सबसे ज़्यादा यील्ड किसमें देखा गया है, खारिफ और रबी में देखा गया है। ओके, इसके अलावा जेड थोड़े क्या है, कम पैदा होते हैं। विच आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, ये तो आप आसानी से लिख सकते हो, ये क्वेश्चन आसानी से कॉपी में लिखिएगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैन ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अल्टरनेटिव टू मॉडर्न एग्रीकल्चर, ये बहुत अच्छा है, इसको भी क्वेश्चन को आपको करना है, एग्जाम में आपका आ चुका है एक बारी। ठीक है, इसी का आंसर हम लोग यहाँ देखते हैं, देखते आइए। द चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, द स्टोरी ऑफ शंकरा विलेज। इन क्या है, फसल उगाने के तरीकों को बदल लिया गया। देखिए क्या है, देयर आर मैनी रीजन्स वाई क्रॉपिंग पैटर्न्स इज चेंज इन ए रीजन। ठीक है, लेट अस लुक इन द केस ऑफ शंकरा विलेज टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस चेंजेस अकोर। There are many villages named Shankara in छत्तीसगढ़। The Shankara out of story is the village near नगरी तहसील धमतरी में है। ठीक है, धमतरी की कहानी आप यहाँ समझिए। धमतरी में सबसे बड़ा दिक्कत ये रहता है कि यहाँ ज़मीन फर्टाइल नहीं है, बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के आप वहाँ पर डबल कल्टिवेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट। ये सांकरा का बात कर, शंकरा कह रहा हूँ कब से मैं, सांकरा है। ठीक है, इट इनहेबिटेंट्स आर एंगेज इन मैनी डिफरेंट ऑक्यूपेशंस बट द मेजॉरिटी आर फार्मर्स। द चीफ क्रॉप इज पैडी। अब क्या है, चीफ क्रॉप क्या है, पैडी है। इन पास्ट पीपल कल्टिवेटेड पैडी ड्यूरिंग खारिफ सीजन्स एंड ग्रू बंगाल ग्राम केसारी वीट इन लिनसीड एक्सेट्रा ड्यूरिंग द रबी सीजन। ठीक है, ये लोगों ने सब उगाया। ए लिटिल ओवर 25 ईयर्स एगो, सिर्फ 25 साल पहले जब डैम कंस्ट्रक्शन सोंडूर रिवर में चल रहा था। ठीक है, सोंडूर रिवर देखिए, सोंडूर रिवर इन डिस्ट्रिक्ट
Canals from the Sondu Dam brought water to the village. Farmers now didn't have to wait for monsoon to irrigate their kharif paddy crop. अब पानी की कमी क्या हो गई, पूर्ति हो गई, ठीक है. With irrigation they also began cultivating paddy in Rabi as well. यहाँ पर dual cultivation शुरू हो गया. The flood irrigation from the canals suited paddy cultivation but did not suit crops such as gram, kesari, and linseeds that require very little water and cannot grow in the water clogged fields. अब देखिए सबसे important क्या है, ये ग्राम है ना जो हम इस्तेमाल करते हैं, बीज तीवरा कह सकते हो उसको. इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है और ज़्यादा पानी वाले इलाके में उगता नहीं है जहाँ पानी रुक रहा हो. सो द फार्मर्स ग्रेजुअली स्टॉप्ड ग्रोइंग दिस क्रॉप. इन क्रॉप्स को उन्होंने उगाना ही छोड़ दिया. द गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च द पैडी प्रोक्यूरमेंट स्कीम टू एनकरेज मोर एंड मोर फार्मर्स टू ग्रो पैडी ड्यूरिंग सीजन. चावल सबकी क्या है, रिक्वायरमेंट है, और पैडी प्रोक्यूरमेंट स्कीम चलाया गया. अब यहाँ पर देखिए क्या है. We can thus see how a development project such as Sondur Dam changed the cropping pattern in the Sankara village. By providing irrigation to farmers, it led to paddy cultivation throughout the year and a steep decline in the cultivation of traditional rabi crops such as gram, kesari, wheat and linseed. ठीक है, तो अब कमर्शियल क्रॉप्स की क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और ट्रेडिशनल क्रॉप्स क्या हो गए, कम पड़ गए. ठीक है. तो भाई खुद सोनपुर घूमने के लिए गया हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे खेत खलिहानों को मिलेंगे, बड़ा सुंदर जगह है, आप घूमने आ सकते हो. सो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस परिस्थिति वहाँ पर अभी 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 बनी हुई हैं. लोग वहाँ पर ज़्यादा चावल उगाया करते हैं, जब किसी मौसम में चले जाइए आपको चावल ही दिखाई देगा साइड में होगा उगता हुआ. ओके, से देखिए यहाँ पर डायग्राम में टेबल दिया हुआ है, ये केस स्टडी है ना. यहाँ पर आएगा क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है. तो इस एग्जांपल को आप देखकर समझाइएगा. इस हमने सोनू डैम का एग्जांपल देख लिया कि डैम बनने से इरिगेशन होने लगा, पानी की कमी दूरी हो गई, पूरी पानी की कमी तो क्या पूरी हो गई. सो एक नया जो क्रॉपिंग पैटर्न था वो बदल गया. ठीक है, इससे प्रोडक्टिविटी बदल गई, रिक्वायरमेंट बदल गए, तरीके बदल गए लोगों के, और क्रॉप उगाने के तरीके बदल गए. साथ ही साथ क्रॉप उगाने जो क्रॉप के टाइप्स जो उग रहे हैं वो भी बदल गए. ठीक है, देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इन राइस कल्टिवेशन एरिया. ठीक है, याद रखिए जब भी आप मैप में कुछ लेबल करें तो यहाँ पर ऐसा शो करना होता है लेबलिंग में. सो यहाँ जो आपको स्क्वायर में दिख रहा हो क्या, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग रीजन है. ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है यहाँ पर, और एसेसरी राइस प्रोड्यूसिंग रीजन है, मतलब ये अनुमान कम करते हैं, इसका मतलब है, देखते जाइए. ठीक है, ये बारिश होने की संख्या है 100 सेंटीमीटर की. ठीक है, सो अब देख सकते हैं कि यहाँ जो रिवर किनारे जितने भी जगहें हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब कैसी जगहें हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल को उगाया जाता है. जिसमें छत्तीसगढ़ मुख्य है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार हो गया, उत्तराखंड है, सॉरी उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल हो गया. ठीक है, इधर असम, भूटान, इस तरफ जो भी आपको दिख रहा है एरिया. ठीक, नेक्स्ट इस वाले में देखिए, ये है वीट कल्टीवेशन एरिया. अब हमने देख लिया था, इसके लिए क्या चाहिए, उसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और वैसे ही हाई क्या चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए होगा. वीट के लिए क्या चाहिए उनको, वीट ठंडी के मौसम में उगता है, सो लो टेम्परेचर और मिल्ड ह्यूमिडिटी. ठीक है, लेकिन पानी तो इसमें भी चाहिए होगा. पानी किसके लिए चाहिए होता है, ताकि वो ठंडी में जम ना जाए. देखिए, देखते जाइए, तो अब देख सकते हैं तो ज़्यादा गेहूँ कौन से रीजन में उगाया जाता है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ. ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ये जो एरिया आप देख सकते हैं, इसको अगर आप लैंडस्केप में 3D मॉडल में देखोगे, दिस इज़ द एरिया विच हैज़ द हाईएस्ट हिली एरियाज इन अपर नॉर्थन एरिया. ठीक है, और ये साउथ में भी इसको उगाया जाता है, लेकिन इसको बताया नहीं गया इसमें ढंग से. और ये जो पैटर्न यहाँ पर बना हुआ छोटा छोटा, वो क्या है, जहाँ उसको एसेसरी रूप में उगाया जाता है, इसमें यहाँ का थार डेजर्ट भी, एरिड प्लांट भी लागू है. ठीक है, और कहाँ है,
छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, इस मैप में अच्छे से दिया नहीं हुआ है, लेकिन ये मुख्य जगह यहाँ पर प्रोडक्शन इसका होता है पंजाब हरियाणा में इस तरफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है। द चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न हैज़ गिवन राइज टू सेवरल न्यू प्रॉब्लम्स इन द लिविंग लाइफ्स ऑफ विलेजर्स। क्या है, अलग अलग प्रोडक्शन करने से क्या होता है, गाँव वालों का जीवन बदल जाता है। वी सॉ हाउ इरीगेशन लेड टू ए शार्प डिक्लाइन इन द कल्टिवेशन ऑफ ट्रेडिशनल रबी क्रॉप्स। इरीगेशन के आने से क्या हो गया, ट्रेडिशनल जो रबी क्रॉप्स उग रहे थे जिसमें कि ग्राम पी जो आपका हम लोग तीवरा भाजी वगैरह खाते हैं, अलग अलग चीज़ें, उनमें से कमी आ गई। द फार्मर्स से दैट दे कैन नॉट ग्रो दिस क्रॉप्स नाउ इवन इफ दे वांट टू। अब क्या है, चूँकि पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि सीज़न में आसपास के इलाकों में कि पानी की कमी वहाँ है नहीं, तो ज़्यादा पानी से क्रॉप नहीं उग रहा है। अब ये भी देखिए, सो दे ग्रो ओनली वन क्रॉप थ्रू आउट दी ईयर। इसीलिए क्या करते हैं, मोनोक्रॉपिंग करते हैं। क्या करते हैं, मोनोक्रॉपिंग। दिस मोनोक्रॉपिंग हैज रिलेटेड सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज देयर इज नो क्रॉप रोटेशन विथ पल्स क्रॉप्स दैट फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल। द अर्थवर्म पॉपुलेशन इन द सॉइल हैज ऑल्सो डिक्लाइन। एक ही प्रकार के जंतु को करने से, अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक अलग यूनिवर्स होता है, एक अलग इकोसिस्टम होता है, फूड चेन बन जाता है नया नया। तो आप उसी फूड चेन को क्या कर रहे हो, मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, फूड वेब में कमी आ जाएगी। सिंपल एग्जांपल कह सकते हो आप, है ना। सो आपने अगर मोनोक्रॉपिंग किया हुआ है तो जो राइस और राइस के जो प्लांट के ऊपर जो डिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वही उस एरिया में क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। क्योंकि अब पल्स उगाते इसलिए हैं लोग ताकि पल्स में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है उस सीड में या सीड के रूट में। ऐसी क्षमताएं आ जाती हैं, ऐसे गुण होते हैं, ऐसे केमिकल्स प्रॉपर्टी होती है कि बैक्टीरिया उसमें अटैच होकर ग्रो कर सके। और चूँकि वो बहुत छोटे और पतले होते हैं, है ना, तो उसकी पूरी प्लांट को खाया जाता है। और उसके रूट भी बहुत अपर लेयर में होते हैं, ह्यूमस लेयर में होते हैं, है ना, ओ लेयर में होते हैं, है कि नहीं, ओ और ए लेयर में होते हैं मान लीजिए। तो उसमें क्या होता है, आप देखिएगा जब उसको उगाते हैं तो ऑलरेडी ज़मीन में उतना ज़्यादा पानी नहीं रहता है, में बहुत कम पानी रहेगा, मिल्ड पानी रहेगा। और सूखने के साथ जैसे धूप पड़ी तो क्या करते हैं, वहाँ पर क्रैक आ जाते हैं। तो क्रैक से क्या हो रहा है, जो एयर है वो ट्रैप होता है अंदर में, उसको बैक्टीरिया खींच करके क्या करता है, उस नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है और प्लांट को ऐसे फूड प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, और प्लांट तो पूरा इस्तेमाल करेगा नहीं, प्रोडक्शन का सिर्फ 23% हिस्सा या 10% हिस्सा को क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है। ठीक है। और इसी पल्स क्रॉप्स में क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेक्शन होता है। ठीक है। सो वो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है इसमें, मतलब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, आधे प्लांट्स को दे रहा है और आधे सॉइल में रह जाते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, इस पल्स क्रॉप्स को हटाते हैं या जो जेड क्रॉप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करने के बाद रिमूव करते हैं, तो प्लांट की फर्टिलिटी में क्या आती है, वृद्धि आती है। तो आपके नेक्स्ट क्रॉप में फ़ायदा होगा।